خاندان کے 17 سے 18 افراد کے درمیان لوگ اس سیلابی ریلی میں بہہ گئے ہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر میں حکمرانوں کی آرام کے لیے حکمرانوں کی فرمائشوں پر کھانے لے جائے جا سکتے ہیں تو کیا وہ ہیلی کاپٹر ان جانوں کو بچانے کے لیے نہیں لا سکتے؟ ہم کیوں ہر حادثے کے بعد سوچتے ہیں؟ وزیر اعظم اور صدر نے افسوس کا اظہار کیا۔ کس بات پہ افسوس کا اظہار؟ یہ قوم کر رہی ہے۔ کسی سیاستدان کے، کسی بیوروکریٹ کے، کسی عسکری حکام کے، کسی جج کے بچے ہوتے اور وہ یہاں پھنسے ہوتے تو کیا انہیں ایسے بہنے دیا جاتا؟ کیا تب ہیلی کاپٹر نہ آتا؟ کیا تب ریسکیو مشینریاں نہ آتی؟ کیا تب تمام صوبائی محکمے اکٹھے ہو کے نہ پہنچ جاتے؟ ادھر یہ انتظامیہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ سوات کا ہے وہ بالکل بیکار، اس نے بہت 2 گھنٹہ وہ لوگ ترس رہے تھے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہاں کا انتظامیہ بالکل فیلئر ہے ہماری حکومت کی۔ ہم نے 3 ٹینیور میں ابھی تک ایسا انتظامیہ نہیں بنایا۔ یہ 1990 ہے یا 1980 ہے، یہ 2025 ہے۔ اس قوم کو افسوس کا اظہار ہے کہ ہم پہ کیسے حکمران مسلط ہیں۔ وہاں پہ ہوتا کسی حکمران کا بیٹا، وہاں پہ ہوتا کسی سیاستدان کا بیٹا تو میں دیکھتا کس طرح ہر سہولت نہ پہنچتی۔ یہاں پر تو جیلوں کے اندر سہولتیں پہنچتی ہیں، یہاں پر تو سمندروں کے اندر ان کے لیے ڈائننگ ہال بنائے جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی نہیں تھے، آپ لوگوں کے بہن بھائی نہیں تھے۔ یہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر کا نظام کہ ہیلی کاپٹر سے میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ میں یہ سارے لوگ ریسکیو ہو سکتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کے حادثات بیتتے رہتے ہیں، یہ ہماری جان پہ گزرتے رہتے ہیں۔ چند دن افسوس ہوتا ہے، اب ان کا اعلان کر دیا جائے گا کہ فی ڈیڈ باڈی ان کو جناب اتنے پیسے ملیں گے۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ مردوں کو پیسے دینے کے لیے، ڈیڈ باڈیوں کو پیسے دینے کے لیے تم آ جاتے ہو جب وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں تمہیں پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تمہارا انتظام کہاں ہوتا ہے؟ تمہارا پیسہ کہاں ہوتا ہے؟ اب یہ جو لوگ زندگی کی بازی ہار گئے، یہ جو سانحہ ہوا، کیا ان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا؟ کتنے گھنٹے یہ لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، مدد کو پکارتے رہے، ارد گرد کھڑے لوگ مختلف لوگوں کو فون کرتے رہے۔ کتنی دیر بعد ریسکیو 1122 پہنچی، کتنی دیر بعد ادارے پہنچے؟ کیا اس واقعے کے بعد علی امین گنڈا پور اس واقعے کے دوران کافی دیر واقعہ رہا نا، موقع پہ پہنچے؟ نہیں۔ کیا گورنر کے پی کے موقع پہ پہنچے؟ نہیں۔ کیا ایمن ولی خان موقع پہ پہنچے؟ کیا مولانا فضل الرحمان موقع پہ پہنچے؟ کیا آفتاب شیرپاؤ موقع پہ پہنچے؟ کیا وفاقی حکومت کا کوئی ہیلی کاپٹر موقع پہ پہنچا؟ اگر ہیلی کاپٹر میں حکمرانوں کی آرام کے لیے حکمرانوں کی فرمائشوں پر کھانے لے جائے جا سکتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی۔ تو کیا وہ ہیلی کاپٹر ان جانوں کو بچانے کے لیے نہیں لا سکتے؟ آپ کو پتا ہو کہ یہ موت کھڑی ہے، سامنے موت ہے، اور آپ چوکیدار ہوں اور آپ کو پابند کیا جائے کہ اس جگہ کسی کو نہیں جانے دینا، اگر آپ اس کے باوجود بھی کسی کو وہاں جانے دیں یا اپنی نشست چھوڑ کے سائڈ پہ چلے جائیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جا کے ان گھروں میں دیکھیں جن کی پورا خاندان اس میں ختم ہو گیا۔ ہم کیوں ہر حادثے کے بعد سوچتے ہیں؟ ہم کیوں ہر حادثے کے بعد ایسا کرتے ہیں؟ مجھے تو افسوس یہ ہوا کہ سارے واقعے کے دوران مجھے ایک سیاسی شخصیت، علی امین گنڈاپور کا ایک بیان آیا کہ اقدامات تیز کر دیے بس، باقی مجھے پورے ٹی وی چینل پر، آپ تو بیٹھے ہو گے نا جی، ایک بڑی سیاسی شخصیت کا مجھے بتا دیں، ہر ٹی وی چینل پہ چل رہا تھا نا، کسی ایک شخصیت نے کہا ہوتا، کوئی ایک شخصیت پہنچی، کسی ایک نے آگے کہا یہ بڑا ظلم ہے، کسی ایک نے کوئی بات کی ہو، نہیں، سب۔ وزیر اعظم اور صدر نے افسوس کا اظہار کیا۔ کس بات پہ افسوس کا اظہار؟ یہ قوم کر رہی ہے۔ اس قوم کو افسوس کا اظہار ہے کہ ہم پہ کیسے حکمران مسلط ہیں۔ افسوس کا اظہار تو یہ ہے کہ ہم پہ نااہل حکمران ہیں جنہوں نے اتنی جانے کے بعد ایک لفظ فکرہ نکال دیا۔ کیا ہمیں افسوس ہے؟ ہمیں افسوس ہے؟ وہاں پہ ہوتا کسی حکمران کا بیٹا، وہاں پہ ہوتا کسی سیاستدان کا بیٹا، وہاں پہ ہوتا کسی جگیردار کا بیٹا تو میں دیکھتا کس طرح ہر سہولت نہ پہنچتی۔ یہاں پر تو جیلوں کے اندر سہولتیں پہنچتی ہیں، یہاں پر تو سمندروں کے اندر ان کے لیے ڈائننگ ہال بنائے جاتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کی ناکامی چیک کیجئے
हमारे इदारों की बदबख्ती चेक कीजिए कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, पानी में फंस गए हैं, दरिया की सतह बुलंद हो रही है और ये जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम लोग सिरकते जाएंगे पानी में। बेकाबू पानी, बेकाबू सैलाब इन्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। आसपास लोग भी मौजूद हैं, हुकूमत नाम की शय भी वहाँ मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर भी है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, कश्तियाँ भी हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं बचाया जा सका। कहाँ था गंडापुर? कहाँ थी गंडापुर की हुकूमत? कहाँ था गंडापुर का PDMA? कहाँ थी गंडापुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ था महकमा इनहार? यहाँ इसी मौके पर अगर ये गंडापुर साहब के किसी सियासतदान के, किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी अस्करी हुकाम के, किसी जज के बच्चे होते और वो यहाँ फंसे होते, तो क्या उन्हें ऐसे बहने दिया जाता? क्या तब हेलीकॉप्टर ना आता? क्या तब रेस्क्यू मशीनरियां ना आती? क्या तब तमाम सूबाई महकमे इकट्ठे होकर ना पहुंच जाते? कि सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, इस मुकाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेस्क्यू का ऑफिस है, रेस्क्यू का इदारा है। 5 मिनट लग जाते उसे, 10 मिनट लग जाते। डॉक्टर महबूब जो वहां सहाफ़ी, उन्होंने बताया कि दरियाए सवात के अंदर गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, रेत निकाली जाती है, क्रशिंग की जाती है, गहरे खड्डे और कुएं बन चुके हैं। तो ये गैर कानूनी काम कौन होने दे रहा है? और इसका नुकसान क्या होता है? जब सैलाब आए और रेस्क्यू इदारे अंदर जाना चाहें तो कुएं, शहरी अंदर चले जाएं तो फंस जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका हिसाब क्या आपने अदालत से लेना है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? इधर ये इंतजामिया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्वात का है वो बिल्कुल बेकार। उसने बहुत 2 घंटा वो लोग तरस रहे थे, 2 घंटों से, लेकिन 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर के बुनियाद में इधर DC बैठा है, वो नहीं पहुंच सकता था। ये 1122 वाले जो साध है उस पे पर्चा नहीं किया तो हम आपके खिलाफ फिर खड़ा होंगे। ये फिर मैं बोलूंगा अपनी हुकूमत को कि खुदा की कसम, अगर आप लोगों ने DC के खिलाफ, रेस्क्यू वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो फिर हम आपका भी वो ऐसा अशर नशर करेंगे कि फिर जिंदगी में याद रखेंगे। इन लोगों ने इमरान खान का भी, उसके साथ भी गद्दारी किया, इमरान खान के साथ भी, इधर भी इंतजाम। हम तो सोचते हैं कि यार ये हम किधर जाते हैं, है? ये इतना बड़ा सानिया होता है, ये सिर्फ फोटो स्टेशन के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए ये सिर्फ आते हैं फिर जाते हैं। तो फिर मैं अपनी हुकूमत अली अमीन गंडापुर से ये मुतालिबा करता हूँ, इधर फजल हकीम से, कि अगर DC और रेस्क्यू 1122 उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया, सस्पेंड करना, ये क्या चीज होता है? हमने बस सस्पेंड किया, हमने उसको, ये नहीं, उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। ये कौन सा मुल्क है? यहाँ का इंतजामिया, मैं खुद PTI से ताल्लुक रखता हूँ, बिल्कुल फेलियर है हमारी हुकूमत की। हमने 3 टेन्योर में अभी तक ऐसा इंतजामिया नहीं बनाया, ऐसे लोगों को नहीं बना। और ये जो इंतजामिया है स्वात का, ये इबरत का निशान बनाना चाहिए इसको। इसीलिए वजह ये है कि जब ख्वाजा खेल से रेला निकला, ये 1990 है या 1980 है, ये 2025 है। वो मेरे बहन भाई नहीं थे, आप लोगों के बहन भाई नहीं थे, सबके बहन भाई थे। यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर का निजाम, के हेलीकॉप्टर से मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये समझता हूँ कि 5 मिनट में ये सारे लोग रेस्क्यू हो सकते थे। ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। एक ही वीडियो आ रही थी कि लोग जा रहे हैं, मौत को अपने गले लगा रहे हैं। कहीं पे आपको एक वीडियो भी मिली जिसमें कोई इंसान गमजदा होकर रो रहा है? ये 18 से ज्यादा लोग दरिया के पेट में उभरी हुई एक जगह पर नाश्ता कर रहे थे कि पीछे से एक ऐसा सैलाबी रेला आया। ये जो होटलों वाले हैं, बिल्कुल इन्होंने नाजायज़ तौर पर, ज़ाहिर है हुकूमती आशीर्वाद से, उनसे साजबाज करके ये ऐसी जगहों पर होटल बनाते हैं जो बिल्कुल दरिया में आते हैं। फिर जब सैलाब आता है तो हमें पता चलता है बेशुमार होटल भी उसकी नज़र हो गए। कौन इनको इजाज़तें देता है? कौन इन पर इससे पहले कार्रवाई नहीं करता?
जाता, और फिर ये जनाब चारपाइयाँ लगाते हैं दरियाओं में, फिर बेंच लगाते हैं वहाँ, फिर नाश्ते देते हैं वहाँ बुला बुला के, और जब बिठाते हैं तो फिर नाअहल तरीन हुकूमत है, जो हम वैसे तो नाम लेते हैं स्विट्जरलैंड का नाम लेते हैं कि हम जनाब उससे भी आगे हैं, ग्रीनरी है हमारे पास, पहाड़ हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो वो अकल नहीं है, वो एहतियात नहीं है, वो इंतजाम नहीं है। अंदाजा कीजिए कि कहते हैं घंटे से ज्यादा, को 1.5 घंटा या शायद इससे भी ज्यादा ये लोग वहां तड़पते रहे, मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहे। ना कोई हेलीकॉप्टर आया, ना कोई कश्ती आई, दूर खड़े लोग इन लोगों की बेबसी की वीडियो बनाते रहे। कहां थी ये हुकूमत, कहां है वो सारे फंड्स जो अवाम के नाम पर इकट्ठे किए जाते हैं? तुम लोगों ने सियाहत को खाक फरोग देना है। तो जब लोग देखेंगे कि इस तरह वहां मौत निकलती है और इस तरह के मामलात में कोई हेल्प को नहीं आता, तो खाक हमारी सियाहत के लिए को आएगा। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानियों के साथ इस तरह के हादसात बीतते रहते हैं, ये हमारी जान पे गुजरते रहते हैं। चंद दिन अफसोस होता है, अब इनका ऐलान कर दिया जाएगा कि फी डेड बॉडी इनको जनाब इतने पैसे मिलेंगे। उस वक्त तुम कहां थे? मुर्दों को पैसे देने के लिए, डेड बॉडियों को पैसे देने के लिए तुम आ जाते हो जब वो तड़प रहे होते हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में तुम्हें पुकार रहे होते हैं। उस वक्त तुम्हारा इंतजाम कहां होता है, तुम्हारा पैसा कहां होता है? ये सारा कुछ हमें बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा अजाब अपनी लपेट में लिए हुए है। उस अजाब का नाम है हमारी बेहिसी, हमारी बद इंतजामी। जिन्होंने इजाजतें दी हैं यहां, उनको पकड़ा जाए, जो इंतजाम नहीं कर सके उनको पकड़ा जाए, सजाएं दी जाएं, ताकि इसके बाद कम से कम पाकिस्तानी भी महफूज रह सकें। और दुनिया में इस तरह की जो बदनामी हमारी हो रही है, पूरी दुनिया इस वीडियो को देखी कि ये मुल्क है, यहां हमने जाना, इनकी सियाहत करनी है, यहां को खतरा हुआ तो कौन आएगा? और इस वीडियो को देख के मुझे बताइए कि पाकिस्तान में सियाहत के लिए फिर कौन आएगा? अगर इंक्वायरी होती है तो और जिम्मेदारान को सजा होती है तो फिर पाकिस्तानी बचेंगे और फिर पाकिस्तान बचेगा। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया अपने गवर्नमेंट सिस्टम से कितना ज्यादा नाराज दिख रही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिससे यह लोग इतना भड़के हुए हैं। पाकिस्तान के केपी प्रांत में एक ऐसा हादसा हो गया जो कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और साथ ही पाकिस्तान में इंतजाम का क्या आलम है सारी दुनिया ने देख भी लिया। किसी नदी के किनारे बने स्ट्रीट फूड प्लाजा में घूमने फिरने एंजॉय करने आए दो परिवारों के लोग देखते ही देखते तेज पानी के बहाव में एक एक करके बहते चले गए, लेकिन उन्हें ना तो कोई बचा सका और ना ही किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश की। हालांकि कम से कम 2 घंटे तक पानी के बीच में वह लोग फंसे रहे, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्क्यू करने पहुंचा ही नहीं। पाक मीडिया का कहना है कि अगर हमारा डिपार्टमेंट चाहता तो उन्हें 5 से 10 मिनट के भीतर ही रेस्क्यू कर सकता था, लेकिन वह लोग 2 घंटे तक चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने कोई पहुंचा ही नहीं। ये हमारे पूरे के पूरे नीचे से ऊपर तक सिस्टम का फेलियर है और कुछ नहीं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।